बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नारे भुट्टो। साथियों, आज मैं एक बार फिर बलोचिस्तान के सरजमीन पे खड़ा हूँ, अपने बलोच भाइयों और बहनों के दरमियान खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात बलोचिस्तान का हुकूमत बनाए, वफाक में हुकूमत बनाए। इसलिए उनको मालूम है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनता है, अगर वजीर आला बलोचिस्तान जियाला बनता है, तो इंशाअल्लाह ताला इनके तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगे। वो जानते हैं कि मेरे रगों में बलोच का खून दौड़ता है। वो जानते हैं कि जिस तरीके से मैं बलोचिस्तान का दुख और दर्द को एहसास करता हूं, इस मुल्क में कोई वफाकी सियासतदान में ये एहसास नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि मेरे बलोच भाई, मेरे बलोच बहन किस दुख से, किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो वो जानते हैं कि मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूं और मैं बलोचिस्तान का शोदा का दुख समझता हूं। वो जानते हैं कि मैं बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल जानता हूं। वो जानते हैं कि मैं ना सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा, मगर ये भी जानते हैं कि इनका जो लापता अफराद है, उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूं। ये जानते हैं कि जो वफाक के खिलाफ अगर कोई साजिश है, अगर कोई वफाक को तोड़ना चाहते हैं, अगर कोई बलोचिस्तान के अवाम और वफाक के दरमियान दरारें पैदा करने चाहते हैं, तो वाहिद बिलावल भुट्टो जरदारी है जो ये साजिश भी नाकाम करेगा। वो जानते हैं कि हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। वो जानते हैं कि हम बिला तफरीक खिदमत करते हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो डरता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो घबराता नहीं है। हम अपने पांव पे खड़े होकर तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है, मगर अपने अवाम के हक पे सौदा नहीं कर सकते। वो जानते हैं
کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلوچستان کو اپنا حق دلوا سکتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ صدر زرداری کا 18ویں ترمیم پہ اگر پوری طریقہ سے عمل درآمد ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ اگر صدر زرداری کا NFC ایوارڈ پہ پورا طریقے سے عمل درآمد ہوتا، وہ جانتے ہیں کہ اگر صدر زرداری کے آغاز حقوق بلوچستان کے پیکج پہ پوری طریقے سے عمل درآمد ہوتا تو آج بلوچستان میں اور بلوچستان کے ارد گرد جتنے بھی سازشیں پک رہے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے. وہ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلوچستان کے عوام کا جو اصل مسئلہ ہے، جو روزگار کا مسئلہ ہے، جو غربت کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم وہ واحد جماعت ہے جو ان تمام مسائل کا مقابلہ نہ صرف کریں گے مگر انشاءاللہ تعالی فتح بھی حاصل کریں گے. یہی تو وجہ ہے کہ ایک بار پھر میری پارٹی کو دہشت گردی کے اور دہشت گردوں کے نشانے پہ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تشدد کی وجہ سے، ان کی نفرت اور تقسیم کی وجہ سے، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے کہ شاید یہ تو بچہ ہے، یہ تو خوف زدہ ہو جائے گا، یہ پیچھے ہٹ جائے گا، یہ ان کی بھول ہے. نہیں ہٹے گا. یہ انہوں نے پچھلے چند دنوں میں ان سازشی قوتوں میں، ان دہشت گردوں تنظیموں نے میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں پہ کتنے حملے کیے ہیں. مستونگ میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، تربت پہ میرے امیدوار پہ حملہ ہوا. 2 حملے ہوئے تربت پہ، ایک اصغر ہند صاحب پہ اور دوسرا ظہور بلیری صاحب پہ. بولان میں میرے امیدوار پہ حملہ ہوا، ہمارا کارکن شہید ہوئے. کوئٹہ میں ہمارا سابق جو صوبائی صدر ہے جھٹک صاحب، اس پہ حملہ ہوا. اور حال ہی میں یہاں آپ کے خزدار میں آغا شکیل دورانی صاحب پہ حملہ ہوا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے جیالے یہ حملے دیکھ کے گھبرا جائیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری ان کی حملوں کی وجہ سے خوف زدہ ہو جائیں گے. یہ ان کی بھول ہے. ہم شہیدوں کے جماعت ہے، ہم بہادروں کے جماعت ہے، ہم غیرت مندوں کے جماعت ہے. ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی دہشت گرد کے سامنے، کسی یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا. ہم انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اپنی ووٹ کی طاقت سے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی ہم ان کی اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کو دکھائیں گے. 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی بلوچستان بھر میں تیروں کی بارش ہوگا، تیروں کی بارش ہوگا. یہ میں بلوچستان کے خواتین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی
مگر انشاءاللہ تعالی میں آپ کا خدمت ویسے کروں گا جیسے ایک بیٹا اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ میں بلوچستان کے اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی طرح نوجوان ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں زندگی بھر آپ کا نمائندگی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم آپ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ کسی ایک الیکشن کی وجہ سے تو نہیں ہے، ہمارا تو 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ میں آپ کا آواز بن کے اگر میں پارلیمان میں پہنچتا ہوں تو بلوچستان کے عوام کو یہ معلوم ہے کہ ان کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، ان کا آواز اٹھا سکتا ہے۔ اگر میں تخت لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا نمائندہ بن کے تخت لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ میں اگر ملک کا وزیر خارجہ بنا تو آپ کے آواز بن کے دنیا بھر میں آپ کا آواز اٹھایا، آپ کا نمائندگی کی۔ اگر انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ کی وجہ سے میں آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو وزیر اعظم کے گھر پہ بلوچستان کے عوام کو معلوم ہوگا کہ ان کا نمائندہ بیٹھا ہے، ان کا بھائی بیٹھا ہے، ان کا بیٹا بیٹھا ہے۔ ساتھیوں، یہ جو آج کل ملک کے حالات ہے، ایک طرف ایک تاریخی معاشی بحران ہے، دوسری طرف دہشت گرد ایک بار پھر اپنے سر اٹھا رہے ہیں، تیسری طرف تو ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے، یہ پرانی سیاست کی وجہ سے، لاہور کے سیاستدانوں کی سیاست کی وجہ سے، تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے، مہنگائی کی صورت میں، غربت کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے، صرف عوام کا خون سستا ہے، صرف بلوچ کا خون سستا ہے، صرف ہمارا خون سستا ہے۔ میں ایک نئی سوچ لے کے میدان میں آیا ہوں۔ میں عوام سے درخواست کر رہا ہوں کہ چنو ایک نئی سوچ کو، چنو پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو آپ کا ان تمام مسائل سے، آپ کو ان تمام بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ ہمارا عوامی معاشی معاہدہ ہے، 10 نکاتی ایجنڈا ہے، ہم نے طے کیا ہے، یہ میرا اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں وفاق کا جو وہ 17 وزارتیں ہیں جن کو 2015 میں ڈیوالو ہونا چاہیے تھا، جن کا سالانہ 300 ارب روپیہ خرچہ ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ 17 وزارتیں کو بند کر کے یہ سالانہ 300 ارب روپیہ کا رقم بلوچستان کے عوام پہ خرچ کروں گا۔ میں جو سالانہ اس ملک کے اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسڈی دلواتا ہے، آپ کی ٹیکس کی پیسہ سے جو سبسڈی دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کتنا ہے؟ سالانہ
1500 अरब सालाना अशराफिया को सब्सिडी की सूरत में दिया जाता है। मैं बलूचिस्तान के अवाम से वादा करता हूं कि मैं ये अशराफिया से ये पैसा छीन के आपका जेब में दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा वादा है बलूचिस्तान के अवाम से कि आपकी आमदनी में मैं ना सिर्फ इजाफा करूंगा मगर इंशाअल्लाह ताला इसको दुगनी करके दिखाऊंगा। मेरा वादा है इस सूबा के अवाम से कि मैंने जिस तरीके से सिंध में 20 लाख घर बना रहा हूं सिला मुतासरीन के लिए, वहां के जो मालिकाना हुकूक है उन घर में रहने वाले खवातीन को दे रहा हूं, वैसे इंशाअल्लाह ताला मैं बलूचिस्तान के अवाम के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी 30 लाख घर बनाऊंगा। मेरा वादा है, एक लाहौर का एक बहुत ही पुराना सियासतदान है, वो कहता है कि मैंने 2013 में पाकिस्तान का लोड शेडिंग का मसला खत्म कर दिया। जब भी ये बात किया जाता है मुझे हंसी आती है, मैं परेशान हो जाता हूं कि क्या हम कोई दूसरा पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप इसी खुशदार के अवाम से पूछे, आप मेरे कंबर शदात कोट के मेरे लारकानों के अवाम से पूछे, आज भी 18 घंटे लोड शेडिंग होता है। इन्होंने कब लोड शेडिंग खत्म किया था? अगर इन्होंने खत्म किया तो रायवंड का खत्म किया होगा, बाकी पाकिस्तान आज भी अंधेरे में है। यही तो वजह है कि मैं पाकिस्तान के अवाम को कह रहा हूं कि इन पे हमारा भरोसा अब उठ चुका है। हम ना वापदा से उम्मीद रखते हैं, ना ये जो वफाक के पावर मिनिस्ट्री पे उम्मीद रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला अपना बंदोबस्त करेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला इस सूबे बलूचिस्तान के हर जिला में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाऊंगा, अपना सोलर लगाऊंगा, अपना विंड पावर लगाऊंगा। हम अपना बिजली बना के कम कीमतों पे अपने अवाम को वह बिजली पहुंचाएंगे। और जो गरीब लोग हैं, जो हकदार है, उनको इंशाअल्लाह ताला मैं 300 यूनिट मुफ्त सोलर की बिजली दिलवाऊंगा। मैं अपने बलूचिस्तान को खवातीन को यकीन दयानी दिलाना चाह रहा हूं कि मैं ना सिर्फ आपकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करूंगा मगर इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के खवातीन के लिए बिलासूद कर्जा के बंदोबस्त करूंगा ताकि हमारे बलूचिस्तान के खवातीन अपनी कारोबार करे, अपनी खानदान के को मदद करे और मुल्क की मईशत में अपने किरदार अदा करे। आप मेरे बलूचिस्तान के छोटे किसानों को बताए कि बिलावल भुट्टो आएगा तो अशराफिया का सब्सिडी खत्म करके तमाम छोटे किसानों को बेनजीर किसान कार्ड दिलवाएगा और आपके जेब में पैसा। आपको अगर खाद की सब्सिडी देनी है तो किसी बड़ी बड़ी कंपनी के बजाय मैं सीधा अपना किसान की जेब में यह पैसा दिलवाऊंगा। आप मेरे बलोच मजदूरों को, मेहनत कशों को, मेहनत करने वालों को बताएं कि इंशाअल्लाह ताला मेरा हुकूमत बनेगा तो मैं बेनजीर मजदूर कार्ड लेके आऊंगा और बलूचिस्तान के मजदूरों को उनका अपना मेहनत का सिला दिलवाऊंगा। मैं बलूचिस्तान के नौजवानों को, अपने भाइयों से, अपने बहनों से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं बेनजीर यूथ कार्ड लेकर आऊंगा और बलूचिस्तान के जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, उनको मैं ये कार्ड दिलवाऊंगा ताकि उनको माली मदद मिले जब तक उनको रोजगार ना मिले, जब तक उनको रोजगार मिले। मैं इंशाअल्लाह ताला भूख और गुर्बत का मुकाबला करने के लिए
यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम चलाऊंगा। मैं अपने जो स्कूल्स हैं, अपने तालीमी इदारों हैं, वहां मैं बलोचिस्तान के बच्चों को खाना खिलाऊंगा ताकि हम भूख का मुकाबला करें, हम गुर्बत का मुकाबला करें। मैं बलोचिस्तान के अवाम को अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, हाथ बांध के कहता हूं कि तशद्दुद की सियासत ना करें, दहशतगर्दी की सियासत ना अपनाएं। अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मुल्क बनाया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक गोली भी नहीं चलाया, मगर पूरा पाकिस्तान बना के दे दिया हमें। आप अपना सियासत करें, आप अपना तहरीकें चलाए पुरअमन तरीके से, किसी और को मौका ना दो कि हमारे बच्चों के, हमारे बलोच बच्चों का, हमारे बलोच बहनों के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल का हल मैं खुद निकाल दूंगा। वो जो दहशतगर्दों का सर फिर से उठ रहा है, मैं खुद वो सर काटूंगा। जो लोग ये समझते हैं कि लापता अफराद बलोचिस्तान के अवाम के लिए या पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई इशू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है, इनको मालूम ही नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं उनको मनाऊंगा, मैं उनको समझाऊंगा कि कौमें, मुल्क, वफाक इस तरीके से नहीं चल सकता। आखिरकार इस इशू का कोई हल तो निकलना पड़ेगा। हम 2024 में है, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाता है, जब कभी हमारा कोई भाई तो कभी हमारा कोई बहन इस इशू को उठा के एहतजाज करते हैं और उनको हम जवाब भी नहीं देते, उनसे हम बात भी नहीं करते। मुझे तो बहुत दुख हुआ कि जिस तरीके से जो इंटरम हुकूमत है, जो गैर सियासी हुकूमत है, इन्होंने जिस अंदाज से लोगों के साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ इंगेज किया, वो बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी तरीका था। आपको याद होगा जब सदर जरदारी सदर पाकिस्तान था तो कितना स्पॉन्सर्ड तहरीक हमारे खिलाफ शुरू किए गए, मगर सदर जरदारी ने हर किसी के साथ सियासी तौर पे एंगेज किया, एक खलूस नीयत के साथ उनका मसाइल का हल निकालने का पूरा कोशिश किया। यही तरीका है कि हम, चाहे वो बलोचिस्तान का मसले हो, चाहे वो सिंध के मसले हो, चाहे वो पश्तूनख्वा के मसले हो, हम बंदूक के जोर पे तमाम मसले हल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो तरीक़ेकार था, जो सदर जरदारी के मुफाहमत का तरीक़ेकार था, उसको अपना के बलोचिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। आखिरी बात जो मैंने पिछली बार भी कहा और मैं आज एक बार फिर दोहराना चाह रहा हूं, कुछ कुव्वतें ये साजिश करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े, बलोचिस्तान के अवाम आपस में लड़ पड़े, सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा के अवाम आपस में लड़ पड़े। वो इस तकसीम का फ़ायदा उठाते हैं, वो इस लड़ाई का फ़ायदा उठाते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बनाते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं 8 फरवरी के बाद ये नफ़रत और तकसीम की सियासत को दफन करूँगा। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के अंदर साजिशें पक रहे हैं, वैसे पाकिस्तान की बाहर साजिशें पक रहे हैं। और ये कब तक चल सकता है कि हमारा 4 हमसाया मुल्क है, तीन ममालिक से हम लड़ रहे हैं, 3 ममालिक से हम कारोबार तक नहीं कर सकते। एक ही हमारा दोस्त चीन रहा है, उनको भी दहशतगर्द से लेके कुछ कुव्वतें
दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला तमाम ममालिक से इंगेज करेंगे, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो दहशतगर्दी का इशू हो। हम बात करके, डिप्लोमेसी करके, इनके साथ बैठ के इन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे, ताकि मेरे बलूचिस्तान के अवाम कारोबार कर सके, तरक्की कर सके। कारोबार चाहे वो ईरान के साथ करना चाहे, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ करना चाहे, चाहे वो भारत के साथ करना चाहे, ये इनका हक होगा, ये इनका हक होगा कि अपने अवाम की तरक्की का बंदोबस्त करे। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल का हल निकाल सकते हैं, पाकिस्तान के तमाम सियासी कोते, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे लेकर आके एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो खारजा सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं, और खारजा सतह पर जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हैं उनका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। साथियों, सदर जरदारी ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मेरे बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए ये मंसूबा की बुनियाद रखा गया। इसके पीछे सोच ये था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पसमानदा इलाके से गुजरते हुए, दहशतगर्दी से मुतासिर हुए इलाके से गुजरते हुए गवादर तक पहुंचेगा। उन तमाम पसमानदा इलाकों को, उन तमाम दहशतगर्दी से मुतासिर हुए इलाकों को में मुआशी तरक्की लेकर आएंगे, रोजगार के मौके पैदा करेंगे। मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि रायवंड का वजीर आजम दरमियान में तीसरी दफा वजीर आजम बन गया। उस शख्स ने सीपैक का रुख तब्दील कर दिया। जो सीपैक ने पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके से गुजरते हुए गवादर तक पहुंचना था, उसका रुख तब्दील करके लाहौर से लेके गए, और लाहौर में आपका सीपैक का पैसा इस्तेमाल हुआ ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए। उसका नुकसान सीपैक का मंसूबा का हुआ। बलूचिस्तान में जो तरक्की होना था उस तरीके से नहीं हुआ। मगर ये मेरे आपसे वादा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो हमारा हुकूमत पासमानदा इलाकों का हुकूमत होगा। हमारा हुकूमत दहशतगर्दी से मुतासिर हुए इलाकों का हुकूमत होगा। और हम सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला जो पसमानदा इलाके हैं, जो दहशतगर्दी से मुतासिर इलाके हैं, वहां से हम अपना मंसूबे शुरू करेंगे। अगर वहां मुआशी तरक्की होगा तो फिर पूरे पाकिस्तान में मुआशी तरक्की हो सकता है। आपने 8 फरवरी को इन तमाम साजिशों को नाकाम करना है। आपने 8 फरवरी को पूरे बलूचिस्तान में अपनी वोट की ताकत से इन तमाम साजिशी कुव्वतों को शिकस्त दिलवाना है, तीर पे थप्पा लगाना है, तीर को जितवाना है। बलूचिस्तान का निशान क्या? खुजदार का निशान क्या? गैरतमंदों का निशान क्या? बहादुरों का निशान क्या? शहीदों का निशान क्या? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के निशान क्या? मेरा निशान क्या? आपका निशान क्या? जीत का निशान क्या? नारे भुट्टो। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को तीर की जीत होगी, आपकी जीत होगी, और उसके बाद हम मिलके मेहनत करेंगे, मिलके जदोजहद करेंगे। खुदा हाफिज।